Hello everyone, I welcome you all on my channel. So today we will cover all the textual question answers of the chapter The 100 Races Part 1 from your book First Flight. So let's start. So students, the question we are going to cover here, first of all, these are the oral comprehension check which are given in different page numbers in the chapter only, and after that we will do the thinking about the text, means all the textual questions. Alright. So these are the oral comprehension check. First of all, I think these are 10. Alright. And 4 textual questions are given here, means total 14-15 questions are given in my video. And this is my second video on this chapter. In the first video, I discussed with you the summary of this chapter in detail about the author, the notes I provided you, all the characters of this chapter. 6-7 characters are there, everything. Now we are going to cover first of all the oral comprehension check. Okay, so first question is, where in the classroom does Wanda sit and why? So classroom में वांडा कहाँ पे बैठती थी? Actually that room number was 13. So where does she used to sit? वो कहाँ पे बैठा करती थी? And why? The reason we have to tell. So Wanda Petronsky used to sit on the cornermost benches, lost in her world, where rough boys usually sat. So Wanda Petronsky की सीट कहाँ पे? She usually sit on the cornermost benches, जहाँ पे किसी का ध्यान ना जाए. And she never talks anybody, वो किसी से बोलती भी नहीं थी, अपने ही धुन में रहती थी. Lost in her world means अपने ही विचारों में खोई रहती थी, अपने आप से मतलब रखती थी. Where rough boys usually sat, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से मिस्चीवियस चिल्ड्रन जो थे बैठा करते थे, मिस्चीवियस बॉयज़ वहाँ पे बैठा करते थे, वो वहाँ पे बैठती थी. She was very poor, shy and quiet girl and did not want to mess with others, so she preferred to sit in the isolation. वो अलग बैठना इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो चुपचाप रहती थी और बहुत शाय नेचर की थी, एंड किसी से भी उसको लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ किसी से पसंद नहीं था. दैट्स वाई वो सबसे आइसोलेशन में रहती थी, मीन सबसे अलग रहती थी. Next question is question number 2. Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? So Wanda lives upon Boggings Heights. कहाँ पे रहती थी? वो Boggings Heights पे रहती थी, और जहाँ पे कि poor people रहा करते थे. It's not a developed area and is covered with mud. So वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, वहाँ पे चारों तरफ मड था ज़्यादातर. There are no proper roads or street and it is a kind of a slum. तो जहाँ पे actually she was a poor girl, that's why कहाँ पे रहती थी? जो एरिया था वो स्लम एरिया टाइप था. नेक्स्ट क्वेश्चन, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? कब और when and why, कब और क्यों उन्होंने पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस जो थी वो नोटिस की? तो वांडा didn't come to school on Monday and Tuesday but nobody noticed her absence. वांडा एक्चुअली क्लास में सबसे पीछे से सेकंड लास्ट पे बैठती थी, लास्ट सीट के कॉर्नर पे बैठा करती थी, एंड वो बहुत शाय थी, किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, अपनी ही वर्ल्ड में रहा करती थी, अपनी ही धुन में रहती थी, तो कोई उसकी एब्सेंस या प्रेजेंस को नोटिस नहीं करता था. एंड शी नेवर लाफ्ड, वो कभी हंसा भी नहीं करती थी. एंड शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड इन द क्लास, उसका क्लास में कोई फ्रेंड भी नहीं था. When Peggy and Maddie waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent. Otherwise, nobody bothered about her there. So, Peggy and Maddie उसका इसलिए वेट करते थे स्कूल के बाद ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके, so that they can make fun of her, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. एंड इसलिए उन्होंने नोटिस किया कि मंडे एंड ट्यूसडे शी वॉज एब्सेंट, एंड अदरवाइज क्लास में किसी को भी उसकी कोई चिंता नहीं थी वेदर शी वॉज प्रेजेंट और नॉट.
Next question is, what do you think to have fun with her means? So what does this phrase means here? To have fun with her means to laugh at her, means उसके ऊपर हंसना, and it is a human tendency to make fun of others imperfections which are mostly about the appearances. So it is our tendency, ये हमारी प्रवृत्ति होती है, हम ऐसा करते हैं मोस्टली कि हम दूसरों का मजाक बनाते हैं. जिस चीज़ में कोई भी इम्परफेक्ट होता है, जिस चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उस पर हम क्या करते हैं, वी यूजुअली मेक फन ऑफ दोज पीपल. एंड मोस्टली किस पे, उनके अपीयरेंसेस पे, कि कोई कैसा दिखता है, उस पर हम क्या करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. वी मोक एट देम. मोक मीन्स मजाक उड़ाना. Here in the story, Wanda is a source of amusement or pleasure because of her shy nature and her 100 dresses. यहाँ पे इस स्टोरी में वांडा क्या है, अम्यूजमेंट का एक सोर्स है, मीन्स सब उसको देख के हंसते हैं. एंड क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बहुत शाय है नेचर की, वो आंसर कभी भी नहीं देती. एंड उसकी 100 ड्रेसेस जो हैं, उसकी वजह से भी सभी उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? दूसरे बच्चों से डिफरेंट कैसे थी वांडा? सो वांडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पॉलिश गर्ल. शी वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका, whose parents had settled down in America. तो they came from Poland and here at America now they settled down. She was a source of fun because of her last name, which made her different from others because Americans did not have such names and it was difficult to pronounce. So everybody make fun of her. Why? Because she was a because her name was completely different from the Americans. That's why सभी उसका मजाक बनाते थे. And that name was little bit difficult to pronounce. थोड़ा सा difficult था pronounce करने में, इसलिए. She came to school alone and her feet were covered with mud. वो जब भी स्कूल आती तो वो सारे बच्चों से डिफरेंट इसलिए भी डिफरेंट थी बिकॉज वो एक जिस एरिया से, बोगिंग्स हाइट्स जहाँ से वो आती थी, दैट वाज अनडेवलप्ड एरिया. देयर वर नो स्ट्रीट्स, नो रोड्स वर देयर. एंड व्हेन शी यूज्ड टू रीच स्कूल, तो उसके जो फीट थे वो मड से भरे होते थे, कीचड़ से भरे होते थे. मड मीन्स कीचड़ से भरे होते थे. शी प्रीफर्ड टू सिट अलोन इन द लास्ट इन द क्लास में सबसे लास्ट में वो बिल्कुल अकेली बैठती थी, ऐसा बैठना पसंद करती थी. प्रीफर्ड टू सिट अलोन इन द क्लास. शी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस विच वॉज फेडेड बट क्लेम्ड ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस. एंड ये भी एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो सब बच्चों से डिफरेंट थी, बिकॉज वो क्लेम करती थी. She used to say that she has 100 dresses. उसके पास 100 dresses हैं, 60 pair of shoes हैं, लेकिन वो पहनती क्या थी, only one blue dress and which was also faded. वो जो कि क्या होती थी, बिल्कुल faded, colorless you can say, कलर कहीं से निकला हुआ ऐसी ड्रेस पहनती थी. और ये सारी qualities make her different from other children. Next question, did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? तो क्या सच में वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? एंड किस चीज़ से हम ये सोच सकते हैं कि जैसा उसने कहा वैसा उसने किया भी? सो वांडा वॉज टीज्ड एवरी डे बाय हर क्लासमेट्स आफ्टर स्कूल आवर्स. सब उसको चिढ़ाते थे आफ्टर स्कूल आवर्स. दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस एंड हर नेम टू. एक तो उसके अपीयरेंस को देख के, प्लस हर नेम दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन्स. एक्चुअली शी वाज माइग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड. One day, tired of all the teasing and taunting. Students, the pronunciation of this word is not taunting as you usually pronounce. This is taunting. Taunting means दूसरों पे comments करना. All right. So
One day she got so much tired of all these teasing. She got so much annoyed and this stuntings also. So what did she say? She claimed of having 100 dresses and 60 pair of shoes, but nobody believed her. So what did she say? उसने क्या बोला कि I have 100 dresses are there in my closet, in my cupboard, and I have 60 pairs of shoes. लेकिन किसी ने believe नहीं किया. She was a determined girl and had a great amount of self-confidence. And for her number of dresses were not important. उसके लिए dresses का number important नहीं था, but the inner talent which had the real value, and उसके अंदर जो talent था वो उसके लिए matter करता था. Number of dresses doesn't matter for her. And she proved it too. उसने ये prove भी करके दिखाया कि that she had 100 dresses. Actually she drew all those dresses for the competition and she won that also. Next question. Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different? So Maddie जो थी वो क्यों एम्बैरसिंग फील करती थी जब भी पैगी वांडा से क्वेश्चंस पुट करती थी? स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो आई इंट्रोड्यूस्ड यू ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, सो गो थ्रू दैट वीडियो. 6-7 characters are there, and I forgot to introduce only one character. So in the next 2-3 questions I'll introduce with you Jack Bagels. Okay, here I am interrupting you, sorry for that. Now let's again come to the topic and this question. तो मैगी जो थी वो एम्बैरसमेंट क्यों फील करती थी जब पैगी कंटिन्यूसली वांडा से एक ही क्वेश्चंस पूछती थी? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा, कि क्या वो ये जो वांडा थी इसको पसंद करती थी या वो अलग थी थोड़ी? So Maddie is embarrassed by the question Peggy asks Wanda because she is also poor and understands the mental condition of Wanda. Actually Maddie जो थी she also belongs to a poor family. वो poor family को belong करती थी and वो वांडा की mental condition को बहुत अच्छी तरह से समझती थी. She also wears dresses handed down by rich people. वो भी कौन? मैडी भी वही ड्रेसेस पहनती थी जो कि रिच पीपल ने एक बार पहन के फेंक दी होती थी, मीन्स दे दी होती थी दूसरों को. वो दूसरों की पहनी हुई ड्रेसेस, पहन के उतारी हुई ड्रेसेस पहना करती थी बिकॉज मैडी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. दो शी इज़ एन अमेरिकन, जो मैडी थी वो अमेरिकन थी लेकिन उसका माइंडसेट कैसा था? बिल्कुल वांडा जैसा ही था बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू पुअर फैमिलीज. And doesn't want anyone to tease Wanda because of her dress or her name. और वो नहीं चाहती थी, मैडी नहीं चाहती थी कि कोई वांडा को चिढ़ाए किसी भी मैटर पे, चाहे वो उसकी ड्रेस हो या उसका नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? So मैडी जो थी उसने कभी भी पैगी को रोका क्यों नहीं चिढ़ाने से, टीजिंग से क्यों नहीं रोका? एंड ऐसा क्या था जिससे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी? सो मैडी आस्क्स पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. मैडी ने कभी भी पैगी को मना नहीं किया चिढ़ाने के लिए वांडा को, क्योंकि पैगी जो थी शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. And she was a nice girl, but when it came to Wanda, she behaved differently. वो एक अच्छी लड़की थी. कौन? पैगी जो थी she was a good girl, वो अच्छी थी, लेकिन जब वांडा के बारे में बात आती थी तो उसका बिहेवियर जो था वो completely चेंज रहता था, completely डिफरेंट बिहेव करती थी. अदरवाइज शी हेल्प्ड एवरीवन इन ट्रबल, अदरवाइज वो सबकी हेल्प करती थी. दो शी वॉन्ट्स पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. वो चाहती थी कि वो पैगी को मना करे कि वो ना उसको चिढ़ाए, बट शी डिडंट आस्क हर टू डू सो एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टंट्स एंड टीजिंग. एक्चुअली वो सोचती थी कि अगर उसने एक बार भी पैगी को ऐसा करने से मना किया
तो अगला टारगेट कौन होगी? मैडी, बिकॉज मैडी भी पुअर गर्ल है एंड वो हैंड हर डाउन ड्रेसेस पहनती है, वो ड्रेसेस जो रिच पीपल उसको देते हैं। एक्चुअली उसकी मदर क्या करती थी, उन कपड़ों पे हल्की हल्की सी कुछ और डेकोरेशन और उनको कुछ लगा करके थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करती थी। जो रिच पीपल उसको दिया करते थे वो कपड़े मैडी पहनती थी। एंड उसको ये था कि अगर इन केस मैंने एक बार भी पैगी को रोका तो नेक्स्ट टारगेट उस टीजिंग का, उन टंट्स का नेक्स्ट टारगेट कौन बनेगी? मैडी। दैट्स वाई उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो पैगी को रोके। किस चीज़ से? वांडा को चिढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who did Maddie think would win the drawing contest and why? मैडी ने किसके बारे में सोचा था कि वो ड्राइंग कंपटीशन जीतेगा? किसके लिए सोचा था ऐसा एंड क्यों? द रीजन वी हैव टू राइट हियर. सो मैडी ऑलवेज बिलीव दैट Peggy would win the drawing contest as she was good in drawing and everybody in the school loved her because Maddie was a talented girl. She was very intelligent too and उसका ड्राइंग बहुत अच्छा था एंड एवरीबडी स्कूल में हर कोई उसको बहुत अच्छा मानता था एंड उसका इम्प्रेशन ऑन टीचर्स बहुत अच्छा था। क्लासमेट्स पे भी के साथ भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एक्चुअली शी वॉज ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ हर टीचर। नो अदर गर्ल इन द क्लास कुड ड्रॉ एज वेल एज हर। जितना अच्छा वो ड्रॉ कर सकती थी उतना क्लास में कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता था। मीन्स हर ड्रॉइंग वॉज सुपर्ब। सो पैगी डेफिनेटली हैड वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग। इसलिए पैगी के चांसेस पूरे चांसेस थे उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीतने के, मैडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? सो स्टूडेंट्स, this was the character I forgot to introduce you in my previous video of this chapter, which was the detailed analysis. There are 6-7 characters I introduced and here this Jack Bagel I forgot to introduce. So here I am accepting my mistake, alright. So here I'll introduce you, okay. Among the boys, सारे boys में Jack Bagels and among the girls Wanda Petronsky won the drawing contest. So Jack Bagels from boys side the winner and from girls side Wanda Petronsky was the winner. To show her determination, she did not attend the school for 2 days and had drawn 100 sketches of dresses of different colors. So to win the competition, what did she do? Wanda Petronsky, for 2 days she didn't come to school, she didn't appear, and at home she was drawing 100 sketches of different dresses of different color. Each of them was capable to win the contest individually. इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी ड्रेसेस थी कि एक एक को भी अगर प्रेजेंट किया जाए, सिंगल इंडिविजुअल सिंगल ड्रेस भी रखी जाए तो दैट कुड विन द कॉम्पिटिशन. Wanda had drawn all the dresses which she had claimed to have had in the class. वांडा ने वो सारी ड्रेसेस ड्रॉ की थी जिसका वो क्लेम करती थी, जिसके बारे में वो दावा करती थी कि she had 100 dresses. Everybody was very impressed with her drawing skills and clapped for her. हर कोई उसकी इस स्किल से इम्प्रेस हुआ and they give a big round of applause to her. Next question, question number 11. Now students, 4-5 questions are remaining, okay. How is Wanda seen as different by the other girls? So this is the first question from thinking about the text, all right. Those 10 were from the oral comprehension check which is given in your book, and students, it's very important for you. So now these questions we will do, and student, in one more video I'll prepare for this chapter for additional question answers of this part 1, then we'll go for part 2, all right. So how is Wanda seen seen as different by other girls? How do they treat her? So अदर गर्ल्स, दूसरी जो गर्ल्स थी वो वांडा को कैसे देखती थी, अलग डिफरेंट तरीके से कैसे देखती थी, एंड उनके साथ कैसा बिहेव करती थी.
वो गर्ल्स कैसा बिहेव करती थी वांडा के साथ. सो वांडा इज अ पॉलिश गर्ल who had settled in America with her parents. We know very well she was immigrated from Poland. She lived in Bogings Heights. She came to school in same faded blue dress every day with her feet always covered with mud. वो जब भी स्कूल आती थी उसके पाँव सने होते थे किससे? मड से, बिकॉज जहाँ पे वो बोगिंग हाइट्स में रहती थी दैट वॉज अंडर डेवलप्ड एरिया, वो डेवलप्ड नहीं था, अनडेवलप्ड था. हर लास्ट नेम इज क्वाइट फनी एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर हर क्लासमेट्स. एंड उसका जो नेम था पेट्रॉन्स्की सर नेम, वो बहुत डिफरेंट था बिकॉज अमेरिकन्स के जो नेम होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते प्रोनाउंस में. हर अपीयरेंस वॉज नॉट परफेक्ट टू बी इन अ हायर क्लास, सो ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर एंड टीज्ड हर आफ्टर द स्कूल आवर्स. और उसका जो अपीयरेंस था कैसा लगता था, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब हायर सोसाइटी के थे. एंड शी बिलोंग टू लोअर क्लास because she was very poor and she had the dress which was also faded. So after being teased over her tolerance, जब वो बहुत ज़्यादा उसकी tolerance ख़त्म हो गई, she claimed to have had 100 dresses in her closet. जब वो बहुत ज़्यादा irritate हो गई, so what did she say? She said that I have 100 dresses in my cupboard. Next question is, how does Wanda feel about the dresses game? तो ड्रेसेस गेम के बारे में वांडा क्या फील करती है, कैसा फील करती है? वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, एंड वो क्यों ऐसा क्लेम करती है दैट आई हैव 100 ड्रेसेस? सो वांडा फील्स वेरी एम्बेरस्ड बट रिमेन साइलेंट इन द क्लास. उसको बहुत एम्बेरसिंग फील होता था, बट शी नेवर स्पोक एनी थिंग टू एनी बडी. वो कभी किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत शाय थी एंड शी यूज टू सिट एट द कॉर्नर ऑफ द क्लास. She doesn't talk to anyone and sits on the back bench with rough boys so that nobody can give attention to her. She is deeply hurt but never complains about it. बहुत ज़्यादा hurt होती थी but never complains. To avoid their taunts and humiliation, जो अपमानजनक बातें उसको other girls और boys बोलते थे या उस पर जो भी taunts पास करते थे, तो वांडा ने इसके लिए क्या कह दिया? She says that she has 100 dresses and 60 pair of matching shoes in her closet. इसलिए उसने ये सेंटेंस बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड उन्हीं से मैचिंग के 60 पेयर क्या है? शूज के. लेटर ऑन शी ड्रॉज ऑल ऑफ देम ऑन पेपर फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. Next question is, why does Maddie stand by and does not do anything? How is she different from Peggy, or was Peggy's friendship important to Maggie? Why and which line in the text tell you this? So actually Maddie ने कभी सब कुछ वो चुपचाप क्यों सुनती रहती थी, कभी कुछ करती क्यों नहीं थी? Why doesn't she do anything? And वो Peggy से different कैसे थी? Yeah, this question can be asked in another way, that was Peggy's friendship important to Maddie? कि मैडी के लिए पैगी की जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और क्यों? एंड टेक्स्ट में कौन सी लाइन ऐसी है जो हमको इसके बारे में बताती है? सो पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास. शी वॉज सो मच इंटेलिजेंट एंड शी वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ मैडी. दो मैडी इज़ पुअर, Peggy never teases her as she does with Wanda, so Maddie is afraid of losing her friendship. Maddie पुअर थी लेकिन पैगी ने उसको कभी भी नहीं चिढ़ाया. किस चीज़ के लिए? उसके पुअर के लिए. जितनी वो गरीब थी उसकी गरीबी के लिए उसको कभी भी नहीं चिढ़ाया. एंड मैडी जो थी वो डरती भी थी. शी वॉज अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अगर इन केस मैं पैगी को कुछ भी बोलूँगी तो उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी पैगी से. दैट्स वाई, इसी कारण से शी डज नॉट रिस्क टू एनी वन एनॉय पैगी. इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो इरिटेट करे पैगी को. एंड प्रीफर्स टू बी साइलेंट, इसलिए उसने चुप रहना सही समझा. The line Peggy was the best liked girl in the whole room. And here which room is told?
किस रूम की बात की गई है यहाँ पे? दिस वॉज रूम नंबर 13 where the whole class students used to sit, जहाँ पे सारी क्लास बैठती थी. That is described in the chapter room number 16. Peggy could not possibly do anything that was really wrong illustrates this. And line जो है हमारे चैप्टर में वो कौन सी लाइन है? Peggy could not possibly do anything that was really wrong. और पैगी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि wrong हो. ये लाइन्स बताती हैं कि उसके लिए पैगी की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last one. What does Miss Mason think of Vanda's drawings? What do the children think of them? How do you know? So Miss Mason was the class teacher. She was the ideal teacher of क्या कहती हैं मिस मैसन वांडास की ड्राइंग्स के लिए? चिल्ड्रन क्या सोचते हैं उसके बारे में और हमको ये कैसे पता चलता है? सो मिस मैसन इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद वांडास ड्राइंग्स. She considers them really beautiful and worthy of winning individually. So Miss Mason सोचती हैं कि वो उनको nobody can beat वांडा in drawing. वो इतनी सुपर ड्राइंग उन्होंने की है कि अगर एक एक ड्रेस को भी रखा जाए इंडिविजुअली वो प्राइज विनिंग के लायक हैं. The children are also impressed by the drawing skills of Wanda that they all applaud and whistle when she wins among the girls. So, a big round of applause was given for the winning of this girl Wanda. So students, in the next video we will discuss some more additional question answers. So must watch my next video also, because it's going to be very important for you and will be very helpful for you in your exams. All right. So bye bye for now.